ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਲ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਲ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਫੌਜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Over the last few days, we've seen reports of a major uptick in violations of the ceasefire by Russian-backed fighters attempting to provoke Ukraine in the Donbass. For example, a shelling of a Ukrainian kindergarten yesterday, which Russia has falsely asserted was carried out by Ukraine. We also continue to see more and more disinformation being pushed out to the Russian public, including Russian-backed separatists, claiming that Ukraine is planning to launch a massive offensive attack in the Donbass. Well, look, there is simply no evidence of these assertions, and it defies basic logic to believe the Ukrainians would choose this moment, with well over 150,000 troops arrayed on its borders, to escalate a year-long conflict. Russia's state media also continues to make phony allegations of a genocide taking place in the Donbass and push fabricated claims warning about Ukraine's attack on Russia without any evidence. All of these are consistent with the playbook the Russians have used before to set up a false justification to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. This past year, the United States has provided a record amount of security assistance to Ukraine to bolster its defensive, $650 million from Javelin missiles to ammunition. We also previously provided $500 million in Ukraine and humanitarian aid and economic support for Ukraine. And earlier this week, we also announced an additional sovereign loan guarantee of up to $1 billion to strengthen Ukraine's economic resilience. But the bottom line is this: the United States and our allies and partners will support the Ukrainian people. We will hold Russia accountable for its actions. The West is united and resolved. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. PM ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। I invite our Honorable Prime Minister to press the Drona button, which will commence the monumental Kisan Drone Yatra.
सबसे पहले पंजाब और फिर गोवा में ड्रोन यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ड्रोन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और तमिलनाडु सहित असम, राजस्थान और तेलंगाना में ड्रोन यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत की खेती के स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक साथ 100 ड्रोन के अभिनव प्रक्षेपण का गवाह बनने का यह एक ऐतिहासिक क्षण है। नमस्कार। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में
हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नौजवानों के साहस को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्टअप की दुनिया खड़ी हुई है, ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आने देगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੈਲੀ ਚ ਭੱਜ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ
ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਓਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। कम्युनिकेशन प्लान बनाया। एक वक्री तौर पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दी अफसर साहिबान नोडल अफसर बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ महकमा तो नोडल अफसर हैं। एक पोलिंग बूथ पे आशा वर्कर साहिबान प्लान बनाया। एक वक्री तौर पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दी अफसर साहिबान नोडल अफसर बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ महकमा तो नोडल अफसर हैं। एक पोलिंग बूथ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਡਾਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਵੋਟ सर ये सर्टिफिकेट लेके जाओ, क्या ये वोट वोट पान जाएगा वो सर्टिफिकेट लेके जाए या उसकी डोज लगी होनी चाहिए? क्यों आप कंफ्यूजन में रहते हो? नहीं, कंफ्यूजन की कोई लोड नहीं है। हाँ, मैनू पता है। नहीं कोई नहीं, साडे वीर
मैंने पहले कई बार कन्फ्यूजन नहीं, लोगों ने इस तरीके कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करे। सारिया पंजाब दी वोटर साहिबान ने मेरा बेनती है, कोई वैक्सीनेशन दी ताल्लुकात नहीं, तो वोटिंग दे जाओ आराम से बचाव करो। वैक्सीन दी वोट दी कोई समझ नहीं। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। पॉजिटिव भी पा सकते हैं। सानू इन्फॉर्मेशन दो, उन्होंने पोस्टल बैलेट देने ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वखरी तौर पर इंतजाम कर दिए गए। देखो इस करके क्लैरिटी होना चाहिए। छोटे मोटे इस बात को हमेशा असी साडे जिम्मेदारी है, एक प्रेस भी होने के नाते भी जिम्मेदारी है। ये मेरे ख्याल से 5वीं बार मैनू ये बात में थोड़े सामने कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुहानू, क्योंकि इस तरीका का लोगों के दिमाग में कढ़ना चाहिए 100%। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार देखते हुए मानयोग इलेक्शन कमीशन वालों दी गई नहीं एक्सप्रेस कर सकते वोट करना या बूथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ उन्होंने असी पहले फॉर्म दे दी गई फॉर्म डी, और कुछ उसके एक्सप्रेस किया है असी घर च वोट करेंगे। उन्होंने असी घर जाके उत्ते एक जैसा साडा टीम हुंदा है पोलिंग पार्टी दे विच सेम उहो जिहा टीम कंस्टिट्यूट की गई है। उहदे विच माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, पॉलिटिकल पार्टीज दा एजेंट्स भी है, और जिवें साडे कैमरास ने उहो जिहे कैमरा भी नाल भेजी गई है। उत्ते जाके फिर वोटिंग करवा के ले आए गए हैं। उन्होंने संख्या दे बहुत कम संख्या है, 1000 आदमी की। हाले तक साढ़े को 16,342 मिल गए पोस्टल बैलेट दी। ठीक है, इस तरीके काफी डेटा है। ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ, सारिया नु साडे जेडे भी व्यवस्था हुंदी है। देखो वोटां दे दिन त्योहार है, पूरा तैयार ने। आज में वीडियोस मेरे को आ रहे हैं, जिवें साडा डिस्पैच सेंटर्स तैयार हुए हैं। अगर तुसी देखोगे लगेगा तुहानू कि क्या कोई बड़ा महोत्सव हो रहा है कि इस तरीका लगे कि मेरा मोबाइल तो है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, तुहानू मैं दिखा भी सकता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछना मिल। सर जो नए वोटर जा रहे हैं वो वोट करने के बाद उनको वीवीपैट की गाइडेंस देने के लिए कि वाई वीवीपैट जो है जरूरी है, वहां पे भी कोई उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडेंस देने के लिए इंतजाम किया गया ताकि वो अपने वोट का मिलान प्रॉपर तरीके से कर सकें? ये काम हो चुका है। एक ईवीएम वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी देने लई साडे कोल जिन्ना भी एरियाज ने पोलिंग एरियाज पोलिंग स्टेशनस उत्ते जाके पहले 2 महीने गाड़ी दे विच ईवीएम लगाई गए हैं। और उस तो अलावा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबां दे विच भी असी ये कार्रवाई की गई है। इस कर वोट होने तो बाद ने वोट के पहले ही ये एक्सरसाइज की गए हैं। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ प्रोवाइड कर रहे हो जी, निगाह रख रहे हो? हाँ जी, ये तो अपना पोल स्टाफ दी जिन्ना भी रिक्वायरमेंट है, खास करके फूड खाना है, उन्होंने चाह पूछना है, उन्होंने और कुछ चीज़ों की जरूरत है, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव अरेंज किया है। खाण पीण दी सामान नाल ही नाल बेडिंग है, क्योंकि ठंड दी मौसम है। और विमेन एम्प्लॉइज इस बार काफी, क्योंकि कोविड ने देखते हुए किसी ने एग्जामिशन नहीं दी गई है, इस बार काफी विमेन एम्प्लॉइज भी इस काम के लगे हुए हैं। इस करके बेडिंग दे भी इस बार असी व्यवस्था की गई है, उधर रुकने वास्ते बेड शीट्स दी वास्ते गद्दे, ये सारी व्यवस्था
ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 100%। ਇੱਕ EMPLOYEE ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਲੇਟ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਮਾੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਰ इधर जी कल कैंपेन एंड हो गया है, क्या कोई इस तरह की भी कंप्लेंट्स है जो लोग मतलब कुछ कैंडिडेट जो कैंपेन एंड होने के बाद भी यस सर बिल्कुल सही है। वो कौन सी कंप्लेंट? ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-3 जगह ऑलरेडी कार्रवाई भी हो चुका है, FIR भी हो चुका है। सर कौन से ऐसे नेता हैं जिनके नाम कल माननीय CM साहब के खिलाफ भी FIR हुई है, इस तरह काफी जगह हुई। अमृतसर ईस्ट में भी है जी? अमृतसर ईस्ट में नहीं है, अमृतसर ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ और कोई मसला है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पुल उद्घाटन संबंधी इश्यू है वो। नंबर ऑफ सिक्योरिटी में बता देंगे? हाँ जी सर, हाँ जी 8 बजे तो पोलिंग शुरू है और 6 बजे तक है। हाँ, और उसके बाद 10th इज द काउंटिंग डे है। क्योंकि पोलिंग ਦੇ ਦਿਨ में ਹੋ ਜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ पोलिंग स्टेशन ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ VOTING ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ पोल प्रोसेस नंबर ऑफ सिक्योरिटी में बता देंगे? अदरवाइज वो वोट देने तो वंचित हो जाएंगे। इस करके इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। सर नंबर ऑफ सिक्योरिटी में बता देंगे? नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल नंबर चाहिए दोनों? अच्छा ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा अपन लोग नंबर देना से अपन लोग गुरेज करना चाहते हैं, क्योंकि सारिया ने साडा मकसद एरिया डोमिनेशन SSP जगह की मोहाली भी तुझे देखने नहीं मिला होगा, सुनने नहीं मिला होगा इश्यूज वजह है। हाँ, वो सारी इस करके है क्योंकि साडे फोर्स पूरा लगे हुए है। रात इतना ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल पार्टियां फिर पूरा पंजाब दे विच घूम रहे हैं, हम लोग भी इतने बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि आज 18, 19, 20 साडे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट दिन ने। इस दौरान जिन्ना ज्यादा असी विजिल असी लगा कर सकते करना चाहिए असी करेंगे, हम कर रहे हैं। EMPLOYEE ने डिमांड भी की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ 21 फरवरी ਨੂੰ एक कर्मचारी की एक कानूनन जिम्मेदारी है, नॉट ओनली कानूनन जिम्मेदारी है, एक त्योहार है। त्योहार दे विच कोई थकता है बंदा? मैनू नहीं लगता कोई थकता है। लोग सोचते हैं मैं और एक दिन काम करना चाहिए। ठीक है, इस करके मेरा बेनती है इस तरीके मेरे को तो कोई आए नहीं है। मेरे को ये तो मैं एग्जाम्पल दिता, विमेन खास करके आके बोले 80 पोलिंग बूथ लवाएंगे इस बार। देखो कितना बड़ा चेंज है डेमोक्रेसी दे विच। वो बोल रही इस तो पहले सुनने दे विच आउंदी कटवा दो वोट अपना साडे ड्यूटी, हुण दस रहे 80 बूथ लवाएंगे। कोई मेल मेंबर दी लोड नहीं है इस बूथ दे विच। प्रेसाइडिंग असिस्टेंट प्रेसाइडिंग पोल 1 to 80 रहेंगे। इवन वो ये भी मांग रहे सिक्योरिटी फोर्स भी सानू विमेन देते हो, लेकिन ऐसी इस तरीके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर दे। कोई भी हो सना इम्पोर्टेंट है। इस करके देखो माहौल बदल रहे हैं, ड्यूटी करने दे लोग आ रहे हैं और उसने वेलकम करना चाहिए। सर पंजाब पुलिस की कितनी संख्या रहेगी और सुरक्षा बल? हाँ, बहुत अच्छा है क्योंकि काफी उस पास से अभी तक पूछे नहीं, सिक्योरिटी से रह गया है। जेडे भी वोटर साहिबान लगा है आज वोट करने के लिए वो कर जा नहीं पा रहे, खास करके सीनियर सिटीजन, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। सभी आरओ साहिबान ने हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विच पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज अरेंज कर लिया गया। हो सकता है उत्ते बैटरी रन व्हीकल होवे या ऑटो रिक्शा होवे, मिनी वैन होवे, जेडे भी चीज उत्ते संभव है। लेकिन एक कुछ पूल और एक ऐप भी है। तो
उत्थे गाड़ी भेजेंगे। इस करके पिछले समय में जिहड़े भी सुनते सी उस गलबात नहीं है। सारिया इंतजामात इलेक्शन कमीशन ने असीं ते एग्जीक्यूट करने ये सभी जिन्ने भी मैं तुहाडे साझा नियम एक गाइडलाइन देंदी है उसदी मुताबिक काम हुंदा है। 100% मुकम्मल अवेलेबल है। ਸਰ ਕਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੈ तो उत्थे फिर तुरंत 3-4 फ्लाइंग स्क्वाड चले गए, देख लिया गया है, कुछ सामान भी जब्त की गए है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। ਸਮਾਨ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? हाँ जी उन्होंने कोई रोकने की बजाय सेल्फ ये करना चाहिए और खास करके प्रिंट मीडिया वास्ते तो कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया इहदे वास्ते एक गाइडलाइंस है और साथ ही साथ साइलेंट पीरियड के दौरान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 126(1)B मैं तुहानू कागज भी दे सकता हूँ। यू कैन यू योरसेल्फ कैन रीड। मैंने तो काफी समय से तुहानू सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी तुसी पूछते अच्छी बात है। इसका क्लैरिटी तो होना चाहिए। इहदे विच क्लैरिटी ये दी गई है मैं तुहानू मैं दसना चाहूंगा। हाँ इहदे विच लिखिया होया है for the sake of benefit to all इहदे विच लिखा हुआ है display to the public any election matter display to the public any election matter by means of cinematograph television चीज दे विच कवर की गई है इंक्लूडिंग म्यूजिकल कंसर्ट। अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम वगैरह आयोजन करता है वो भी है और इसमें बताया गया पोलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फॉर द क्लोजर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द पोल फॉर एनी इलेक्शन इन दैट पोलिंग एरिया। बहुत सिंपल है, साफ है। इसको पढ़ने के बाद भी अगर आपको क्लैरिटी की जरूरत है क्योंकि मेरे की बजाय आप अपने यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पत्रकार है पता ही है करना किया। सर मोहाली में जो रेड हुई है उसमें क्या कुछ बरामद हुआ? वहाँ गिनती चाहिए तो ना ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ आर्टिकल्स क्या कुछ मिले? आर्टिकल्स उससे बरामद हुई है फ्री बीज टाइप का है। फ्री बी होता है ना लोग का लुभाने वाले सो उसको फिर लिस्ट आउट कर दो तो मैं दस दांगा। कुछ ड्रेस मटेरियल से कुछ मैंने दसिया गया है ड्रेस मटेरियल से कुछ सिलाई मशीन है और मास्क भी है। सर ऑब्जेक्शन किस उसमें है? उसमें जो आइटमें मिली है उसमें कोई ऑब्जेक्शन देख लेंगे अभी क्योंकि हुण इलेक्शन के दौरान की हुंदा है कोई भी सामान सस्पेक्टेड स्थिति विच मिलना नहीं चाहिए। साडा मकसद की है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड सिक्योर इंक्लूसिव माहौल दे विच अते इको फ्रेंडली माहौल दे विच असीं काम करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साडे वल्लों यही हिदायत दिंदी है उन्हां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों सानूं यही हिदायत। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।